Good evening, everyone. Let's start the session with a school song. It all just feels like a dream to me, to find a school so true. And I know it's all in make-believe when I picture a school like you. The one thing that I learned from you is that I can make my dreams come true. Someday when I wake up to find memories of Billabong in my mind, imagine how that could be. Imagine how that could be. T for teamwork, P for empowerment, M for mutual respect, B for passion, I for integrity, A for accountability. Billabong High, Billabong High, Billabong High, you know you can fly. Billabong High, you can touch the sky. Billabong High, Billabong High. We have aspiration over ambition. In our minds we have rhythm, courage and humanity. What makes us Billabong High is we believe we can touch the sky. Billabong High, Billabong High, Billabong High, you know you can fly. Billabong High, you can touch the sky. Billabong High, Billabong High, Billabong High, you know you can fly. Billabong High, touch the sky. A very good evening to everyone. I, Gianna Chaudhary from grade 4, And I, Adya Agrawal from grade 4, welcome you all on the digital platform of Billabong Inspire Stock Series. on the behalf of Billabong High International School, we would like to thank all the parents for their support and work towards our school. Billabong Inspire Stock Series initiative will bring together working parents from various fields of expertise. They will share their life experiences, which will help motivate and inspire the students towards achieving their goals. BHIS strongly believes in core values which inform your thoughts, decisions, and actions and help you align your career or life path to what's important to you. They are the essential foundation in finding your life purpose because they remind us and others who we truly are. BHI's core values are diligence, hardworking, persistent, resilient, service, generosity, enterprise, charity, leadership, stewardship, compassion, kind, empathetic, humble, resourcefulness, creative, risk-taker, dynamic, outward-looking, commitment to a large community, a family, a belief system, cultural models, sustainability, environment and integrity, honest, trustworthy, modest, respectful. Billabong Inspires Talk Series all geared up today for an interesting and enlightening session with our speaker, Ms. Priyanka Ahuja, who will be taking us through her life journey. Ms. Priyanka Ahuja is a singer and artist. She completed her master's in music from Mahila Mahavidyalaya and post-graduation in music from DG College in Prabhakar Music Course, Western Stream. She has been a keen participant in many national and international singing competitions. She has learned music from Dada Chatterjee sir, Kusum Pandey ma'am, and Nishtha Shukla ma'am. Now, without much ado, we would like to welcome our guest speaker for the day, Ms. Priyanka Ahuja. Hi everyone. Thank you so much for inviting. It is a pleasure being amongst you
all, it gives me lot of a sense of self respect. Thank you so much, guys. Thank you, ma'am. मैम मैम मैं आपकी जर्नी से बहुत इंस्पायर हुई हूँ एंड वी बोथ हैव गॉट सो मोटिवेटेड टू सी योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क। मैम, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में। Also, students can ask their questions by writing in the chat box. मैम फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क, आपने कब डिसाइड किया था सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए और आप सिंगर कैसे बने? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी। Okay. It was passion. I was with been singing from my childhood. Stage performance and appreciation boost my confidence, and I started doing singing at the age of 6 because my father is also a very good singer, and my brother is also very good singer and a very good lyricist and composer. So that's why I am also singer. Hello. थैंक यू मैम। मैम, वो आपकी स्किल्स आपने सीखी है जो आपको सिंगिंग करियर में मदद करती हैं? Okay. Actually, first of all, is hard work, dedication, riyaz. What we say have helped me like frequently, tremendously my career. थैंक यू मैम। मैम आपकी लाइफ में पहला म्यूजिक का रोल क्या था? पहला म्यूजिक का like pardon रोल please. क्या था? Sorry. रोल क्या था? पहला म्यूजिक का रोल क्या था? एक्चुअली जो मेरा म्यूजिक का पहला रोल मेरे फादर ही थे। एक्चुअली वो बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहते थे एंड वो मुंबई भी गए, वहाँ पे शिफ्ट हुए एंड आप सबने ही लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा, सबने ही सुना होगा एंड रफ़ी जी का नाम सुना होगा। तो उनके साथ उन्होंने बैठ करके, उठ करके उन्होंने अपनी सिंगिंग उन्हें सुनाई। तो कुछ क्राइसिस ऐसे फैमिली के थे कि उन्हें वापस आना पड़ गया। तो उनका जो लाइक सपना था वो अधूरा रह गया। तो मेरे वही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी सिंगिंग में इतना आगे नाम बढ़ाऊँ कि उनका नाम बहुत रोशन करूँ। तो मेरा रोल जो पहला है वो मेरे फादर ही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसी क्या बेस्ट एडवाइस थी जो किसी सिंगर या म्यूजिशियन ने आपको दी है? हाँ जी, बिल्कुल दी है, मुझे ऐसी एडवाइस है। एक्चुअली सभी को कोई ना कोई एडवाइस अच्छा देता है, जो आपके से भी जो बड़े हमारे गुरुजी हैं, म्यूजिक सीखा है एंड बहुत से राह में ऐसे आते हैं, जैसे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहीं पे भी हम स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमें कुछ लोग ऐसे टकराते हैं जो हमें अच्छा बताते हैं। तो लाइक कंठ से कैसे गाना चाहिए, हम कभी-कभी क्या होता है जुकाम में होते हैं, लाइक स्नीजिंग होती है, सर में दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बट इन केस हमारा अगर शो होता है तो हमें वहाँ पर जाना ज़रूरी होता है, हम जाते हैं, हम नहीं कुछ वो कर पाते हैं। तो लाइक ऐसी मुझे बहुत सारी मतलब मुझे बताया गया कि ऐसे नहीं गा सकते हैं आप, और आप कंठ से गाओगे तो अच्छी आवाज़ निकलेगी आपकी। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, लाइक कभी-कभी हम लोग क्या होता है आजकल के जितने भी सिंगर्स हैं, नेहा कक्कड़ ले लीजिए, ये कोई भी आप ले लो, जो भी न्यू जनरेशन्स के हैं, हमारे जनरेशन के, हम उन्हें देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि ये कितना अच्छा गा रहे हैं, बट उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है ये हम नहीं देखते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होती हैं लाइफ में पीपल्स के कि क्या बोलते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। आप जिस समय स्टेज परफॉर्मेंस के लाइक उसमें होते हो, तो कुछ प्रॉब्लम आपके इंटरनल भी होता है, वो कोई नहीं समझता, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें गाना ही है। तो बहुत से हमारे ऐसे गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं, लाइक जिस समय हमें जुकाम हो, जिस समय में सर दर्द हो, तो किस टाइप आपको अपने गले को मांझना है, आपको कंठ को कैसे अपना सही रखना है, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं हमारे गुरुजी जो हमसे अप होते हैं। थैंक यू मैम। क्या आपकी कोई हॉबी है अदर देन म्यूजिक?
या श्योर बिल्कुल है। मुझे रीडिंग बुक्स बहुत पसंद है एंड डांसिंग बहुत पसंद है। कभी कभी मैं बहुत अकेले होती हूँ, लाइक हमें हमारा क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बंदा समझता है कि अरे यार ये तो बहुत हैप्पी है, आगे से दिखने में बहुत खुश लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी अपनी भी बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं, लाइक कभी कभी लगता है कि हम बिल्कुल सुकून से बैठे। तो मैं गाइस मैं हूँ पंजाबी, बट मुझे क्या बोलते हैं दरगाह जाना बहुत पसंद है। तो मेरी हॉबीज भी कह सकते हो आप, लाइक मुझे वहां जा करके उनके माहौल में ढलना बहुत पसंद है, और वहां पे बैठ करके मैं जब सुकून से बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Amazing, ma'am. Why did you choose Billabong for your kids? और इसलिए क्योंकि लाइक very 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 good school, and Billabong as a school was I'm chosen by my kids by due to in the infrastructures activities, more personality development। क्योंकि जो ये एक मुझे अभी तक जो फील हुआ है, ये इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं लाइक जयपुरिया, मैं किसी की भी वो नहीं करती, बट मैंने जो अपने बच्चों के लिए चूज किया है, आई हैव टू किडोज, वन गर्ल एंड वन बॉय। वन इज इन सिक्स स्टैंडर्ड, टियारा आहूजा, एंड वन इज इन थर्ड, अनग आहूजा। तो मैं मतलब यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट जो होता है ना बच्चों का, वो अमेजिंग है स्कूल में। तो किड्स जो उनकी मेंटली लाइक मेंटल स्टेटमेंट है, जो स्टडीज है, और जितना स्टाफ है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इसलिए मैंने इस स्कूल को चूज किया। थैंक यू मैम। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पैशनेट करती है म्यूजिक के लिए? एक्चुअली पैशनेट करती है क्या मैं बताऊं आपको। इसके लिए मैं जब मैं बॉर्न हुई थी, तो लाइक मेरे पापा मम्मी, आपको जैसे मैंने बताया कि मेरे मम्मी पापा खुद ही बहुत अच्छे सिंगर है, मेरा भाई जो है बहुत ही अच्छा कंपोजर है। तो जो मुझे पैशनेट करती है वो मेरे पापा का बहुत जो सपना था जो अधूरा रह गया, उनको मैंने आगे करने के लिए लाइक वो मेरा बहुत अच्छा पैशन है। Since and are very good lyricist my brother, for me to always be a how I serious at my best game in my father, because since और मैं मैं अपने पापा का सपना आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जैसे कि सब लोग अपने पेरेंट्स का सपना आगे करना चाहते होंगे। तो वो मुझे पैशन देता है कि मुझे मेरे पापा की मतलब चेहरा याद आता है कि हाँ, जो पापा का अधूरा रह गया था सपना, वो मुझे आगे पूरा करना है। तो ये मेरा पैशन है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। थैंक यू मैम। अगर आपको एक मौका मिले म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ बदलने का, तो आप क्या बदलेंगी और क्यों? एक्चुअली हैं लाइक अगर मैं कुछ बदलना चाहूंगी तो जैसे इंडस्ट्रीज क्या है बदली हुई है। हम कानपुर में रहते हैं तो हमारा क्या कहलाता है इंडस्ट्रीज कॉलीवुड, एंड पंजाब में है तो इट्स पंजाबी वुड। ओके, एंड अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड सब कुछ है। बॉलीवुड में क्या है, प्ले बैकिंग सिंगिंग बहुत होती है, एल्बम्स एंड ऑल होती हैं। पंजाबी में क्या है, पंजाब में बहुत ज्यादा एल्बम्स शूट होती हैं जहाँ की वो प्ले बैकिंग नहीं होती है। तो मैं ये चाहूंगी कि जो बॉलीवुड सिंगिंग है वो क्या है, वो प्ले बैकिंग में चलती है, एंड प्लस प्रॉपर वो हिंदीज एंड ऑल उसमें लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अगर कुछ मिक्स हो जाए पंजाबी एंड ऑल, तो उसका मजा ही कुछ और होता है सिंगिंग में। तो मैं इस चीज को जरूर बदलना चाहूंगी कि हाँ, एल्बम शूट जो करते हैं पंजाब में, वो हमारे क्या बोलते हैं प्ले बैकिंग में भी बदले, बॉलीवुड उनको चांस दे। थैंक यू मैम। मैम, आपको क्या लगता है, पैशन ने आपको चूज किया या आपने पैशन को चूज किया है? नहीं, पैशन ने मुझे क्या, मैं मेरा ये पैशन था कि मैं सिंगिंग करूं और मेरी आवाज सारे मतलब हिंदुस्तान में वर्ल्ड में फेमस हो, और मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो मेरा ये पैशन है कि मैं मतलब हर जगह फेमस हूँ। आप सब और जितने भी लोग हैं मुझे सुनते हैं अभी भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में एंड ऑल, तो मैं सबको यही कहूंगी कि मतलब ये मेरा पैशन है कि मुझे कुछ करना है, लाइक कि मेरी वॉइस हर जगह पे फैले।
मैम, किस एज में स्टूडेंट्स को सिंगर बनने की तैयारी शुरू करनी चाहिए और कौन से कोर्स जरूरी हैं एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए? देखिए, इसके लिए कोई एज ड्यूरेशन नहीं होता है कि सिंगिंग जो है ना एक इतनी खूबसूरत अपने में ही एक चीज है कि इसका जब नाम ही आता है ना सिंगिंग लाइक म्यूजिक म्यूजिक का अपने आप में ही एक बहुत अलग है। उसका कोई आप वर्ड ही नहीं दे सकते हो या कोई सेंटेंस ही नहीं बना सकते हो कि म्यूजिक का क्या है। जो एज है एक्चुअली करेक्शन एज जो है वो वैसे तो कोई भी एज नहीं होती। कोई भी बच्चा या अगर आपकी जो भी एज है आप 30 हो 30 प्लस हो लाइक आप कभी भी सिंगिंग कर सकते हो। बट जो एक सही एज होती है कि आपको हाँ अगर आपने ठाना हुआ है कि आपको कुछ इसमें पैशन है आपका कि आपको कुछ करना है तो लाइक इसकी जो एज है वो लाइक 5 ईयर के बाद आफ्टर 5 आप अच्छा कुछ कर सकते हो। और सबसे मेन चीज ये है कि आपको क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। लाइक आजकल के लोग क्या है वेस्टर्न की ओर बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। तो मेरी जो एडवाइस है मैं ये चाहूंगी कि सबको क्लासिकल बेस पहले सीखना चाहिए क्योंकि क्लासिकल बेस एक ऐसा बेस है जो आप फर्स्ट जैसे आप लोग पढ़ते हो आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग पीजी से नर्सरी एंड देन पूरा अप जाते हो 12th तक की। तो ये इसके भी ऐसे कोर्सेज होते हैं क्लासिकल के कि आप पहले प्रभाकर करो विशारद करो देन उसके बाद डबल विशारद करो। तो क्लासिकल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि क्लासिकल जो है वो पहले आप स्टार्ट करो। वेस्टर्न तो अपने आप ही बहुत अच्छा आ जाएंगे। एंड द इसकी जो एज स्टार्टिंग जो एज है अगर आपको कुछ इसमें बनना है तो आपको आफ्टर 5 आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। और अदरवाइज की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप कभी भी म्यूजिक को अपना बना सकते हो। म्यूजिक इतनी खूबसूरत चीज है। Thank you, ma'am. Before we ask you the last question, ma'am, we all want to hear a song from you. या श्योर। जो मैं सॉन्ग गाने जा रही हूँ वो मेरा खुद का ही ओन सॉन्ग है। तो मैं आप सबको सुनाती हूँ। हम्म, मैंने दिल पे लगाई थी नो एंट्री चोरी चोरी चुपके तू आ गया। तेरे नाम से है चल पड़ी ये धड़कने मेरी। फिर मिलेंगे कहते कहते तू चला गया। संग दिल सनम ओ सनम बेवफा जाने तुझसे ही मैंने प्यार क्यों किया। साजन तू है मेरा जान मन तू है दिल ने जिसे अपना कहा। क्योंकि जागी न सोई फिल्मों में खोई जपती रही मैं तेरा नाम। हेलो सलमान तू है मेरी जान जीत लिया है तूने दिल का जहान। लव तू मेरा लकी मैं तेरी है सलाम इश्क तुझको मेरे सुल्तान। थैंक यू सो मच। Amazing, ma'am. What a voice. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान। तो मैंने उनको ये डेडिकेट करने के लिए एक सॉन्ग बनाया था हेलो सलमान जो कि यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे सब कुछ शो है। तो आप कभी भी देख सकते हो। आप लोगों का प्यार है जो मैं आज यहाँ पर हूँ आप लोग के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप कोई मोटिवेशनल थॉट शेयर करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल मोटिवेशनल सॉन्ग बिल्कुल करना चाहूंगी मैं। आप बताओ क्या क्या चीज मैं शेयर करूं बताइए आप लोग। मैम, हम बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस? ओके आप लोगों के लिए बहुत ही आप लोग इतने प्यारे से हो फूल जैसे होते हो। आप लोग के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग अच्छे बनो अपने पेरेंट्स का कहना मानो। एंड जीवन में ये याद रखना कि एक मतलब कि दौर ऐसा आता है कि जब आप लोग पता है बच्चे शैतानी मेरे भी बच्चे हैं दो कभी कभी वो शैतानी करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा आज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि आप अपना कीमती वक्त कैसे गंवा रहे हो। कि जो मदर पेरेंट्स आज आप लोगों के पेरेंट्स पता है आप लोगों के लिए कर रहे हैं इतना हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि अब आप लोग अपना टाइम बिल्कुल बिना वेस्ट करे पेरेंट्स की बात मान करके और
एक जीवन में अपना बनाएं आधार कि आपको क्या बनना है, उसको चूज करें अच्छे से, और पता है उस राह में चल दो बच्चों आप लोग। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, और आप सब भी मेरे अपने बच्चे ही जैसे हो, तो मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि एक आधार अपनी लाइफ का बनाइए, जिस जिस पाथ पे आप चल दो बस, कि और अपने मम्मी पापा का नाम बहुत ऊंचा करो। एक लाइफ में होना चाहिए कि लाइफ हमको ये चीज बननी है, तो उसको बिल्कुल अपने अंदर आप डाल लो कि हाँ मुझे ये करके रहना है, मम्मी पापा मैं आपके लिए करके रहूंगी, कि पैशन है मेरा ये। तो मैं सबके लिए यही बोलूंगी कि बच्चों कुछ करो लाइफ में, कुछ बन के दिखाओ सबको। Thank you so much, ma'am. Now we would like to read the questions from the chat box. मैम, कोई जानना चाहता है आपके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन कौन सी है? मेरी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, मैंने ना फर्स्ट सॉन्ग जब मैंने गाया था, अगर आप सबको पता होगा कि यहाँ पर एक केस हुआ था पार्ले जी का, लाइक पीयूष एंड ऑल, तो मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग उस सॉन्ग से थी, तेरा साथ किया क्या इस दिन के लिए। हाँ जी, इसमें यूट्यूब में ये सॉन्ग है, तेरा साथ किया क्या इस दिन के लिए, वो मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग थी। वो पार्ले जी लोगों का केस था, लाइक कुछ हो गया था, ज्योति हत्याकांड, अगर आप सबने सुना हो, आप तो बच्चे हो, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पेरेंट्स ने सबने सुना होगा, तो वो लाइक जो वो दिल को छूता है ना मेरे गाना, वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी लाइफ की, कि जो मैंने किया था। मैंने बचपन से बहुत सीखा है म्यूजिक, 6 ईयर की जब मैं थी तब से मैंने स्टार्ट किया सिंगिंग, सीखते सीखते, और मैं आज तक भी अभी भी मैं सीख रही हूँ सिंगिंग। बट वो मेरा लाइफ का पहला ऐसा सॉन्ग था जो मुझे लगा कि दिल को छूता है वो सॉन्ग। तो मैं चाहूँ, अगर आप लोग चाहो तो मैं 2 लाइन उसकी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। Yes, sure, ma'am. या हम्म तेरा साथ किया, तेरा साथ किया क्या इस दिन के लिए, विश्वास किया क्या इस दिन के लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने अपनी लाइफ में सबको, मतलब यूट्यूबर्स जितने हैं सबने मेरा ये गाना सुना, तो ये मेरी पहली शुरुआत थी इस सॉन्ग से। ऐसे मैंने बहुत स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अभी तक जो मेरा फर्स्ट, जिसे आप कहोगे कि हाँ कि आपके दिल को छूने वाला क्या है, तो ये एक हत्याकांड हुआ था कानपुर में। लाइक बहुत टाइम हो गया है इसको हुए हुए, 7-8 साल हो गए हैं, बट ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो दिल को छूता है। ये मेरी स्टार्टिंग थी सॉन्ग की। Wow, ma'am, you have a beautiful voice. Ma'am, the next question is, who is your favorite singer? वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट सिंगर, एक सिंगर होकर के मैं ये बता ही नहीं सकती कि मेरा फेवरेट सिंगर कौन है। सारे ही जितने भी कलाकार हैं, मैं सबकी ही तारीफ करूंगी, क्योंकि जो भी गायक होता है वो दिल से गाता है, चाहे जैसा भी हो। किसी की आवाज भारी होती है, किसी की आवाज पतली होती है, कुछ भी होता है। मैं भी एक अच्छी सिंगर हूँ, या जो भी आप लोग समझते हो, मैं जैसी भी सिंगर हूँ, लाइक तो मैं ये चाहूंगी कि सभी मेरे बेस्ट सिंगर है। बट हाँ, एक है जो जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, वो है लता जी, जिन्हें हम लता दीदी बोलते हैं इंडस्ट्रीज में, तो लता जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। Ma'am, the next question is, what made you persistent in achieving your goal? व्हाट अचीविंग मी गोल, या एक्चुअली मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि लाइक मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि मैं उनको सुनती थी बचपन से, वो गाते थे, तो मैं उनका अधूरा रह गया। तो मेरे पापा का जो सपना है ना, उसको मुझे मुझे उनको आगे बढ़ाना है, लाइक अपने सपने को उनकी आंखों में मैं देखती हूँ अपना ये सपना। तो ये Ma'am, next question है कि आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपने गाया वो क्या है? मेरा फेवरेट सॉन्ग, लाइक मेरा खुद का कि अदर सिंगर का? आपने जो गाया है। ओके, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, मैंने अभी आपको सुनाया कि तेरा साथ किया क्या इस दिन के लिए, वो मेरा बहुत ही दिल के बहुत ही करीब है। लेकिन हाँ, जो सेकंड सॉन्ग है मेरा, हाँ वो मैं आपको सुनाती हूँ।
जो मुझे बहुत पसंद है खुद को भी। सो हियर वी गो। मैं हूँ नॉटी गर्ल, कहंदे ने हॉटी गर्ल, डोंट टच मी बेबी टच मी, मैं बड़ी ग्लॉसी गर्ल। मैं हूँ नॉटी गर्ल, कहंदे ने हॉटी गर्ल, डोंट टच मी बेबी टच मी, मैं बड़ी ग्लॉसी गर्ल। मैंने चाहिए ओनली ब्रांड्स, मैंने फॉलो कर द ट्रेंड, मेरे लुक्स पे मर जाने सब, कहंदे बेबी गिव मी अ चांस। मैं हूँ नॉटी, मैं हूँ नॉटी, मैं हूँ नॉटी गर्ल, कहंदे ने हॉटी गर्ल, डोंट टच मी बेबी टच मी, मैं बड़ी ग्लॉसी गर्ल। थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप म्यूजिक और फैमिली टाइम को कैसे बैलेंस करती हैं? मैं म्यूजिक एंड अपने जो मैं एक्चुअली आई एम सिंगर, एंड मुझे बहुत लगता है, जैसे मेरे बच्चे हैं वो स्कूल में, आप लोगों को पता है कि बिलाबोंग स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो आते हैं मैं कभी भी अपने प्रायोरिटी नहीं देती कि मुझे मतलब मैं म्यूजिक लाइन में हूँ, मैं सिंगर हूँ एंड आई एम अ वर्किंग लेडी, तो मैं सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दूँ, नो इट्स नॉट। तो मैं अपने बच्चों को एंड उसको हैंडल करके रखती हूँ कि जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो लाइक मुझे कहीं जाना है बाहर मुंबई में, कुछ भी करने जाना होता है, लाइक परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस मेरी होती है, तो वो मेरा बहुत ज्यादा साथ देते हैं। मेरे बच्चे इनफैक्ट मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे बूस्ट करते हैं कि उनको भी बहुत पसंद है कि हाँ मम्मा आप सिंगिंग करते हो तो आप परेशान ना हो, हम लोग खुद कर लेंगे। तो लाइक बैलेंस बना करके रखना पड़ता है लाइफ में। प्रोफेशन लाइफ अपनी अलग होती है एंड घर की लाइफ अलग होती है। तो फर्स्ट एज अ ह्यूमन मैं एक साधारण बंदी हूँ, और प्रोफेशन जो मेरा है मैं उसको सेकेंडरी रखती हूँ। मेरे बच्चे एंड मेरा घर परिवार मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले प्रायोरिटी अपने बच्चों को देती हूँ कि लाइक उन्हें क्या बनना है। मैं अपने बच्चों से भी ये पूछती हूँ कि बेटा जो आपको बनना है वो पहले आप देखो। तो लाइक मेरे लिए पहला मेरा वो है कि मैं अपने बच्चों को, फैमिली को ज्यादा टाइम दूं। मैम ये thank you, ma'am. Now it's time for some fun element. It's quiz time. Students will get 10 seconds for each question, and they are requested to write their answer in the chat box. Here's the first question. An excessive fondness for music is called, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, it's 3, C, 2, people. 1, 0. and the right answer is option B, given by Pankudi Goyal. Here's the next question. Who was the first guitar player in the field of Hindustani music? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. and the right answer is option C, given by Rudra. Here's the next question. Who is the youngest Indian singer to win a Filmfare Award? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. and the right answer is option B, given by Pankudi Goyal. Here's the next question. Which band is so important to their country's economy in that it cannot be allowed to fall? And your options are
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option C, given by Rudraksh. Here's the next question. What is the oldest musical instrument in use to this day? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option A, given by Pankuri Goyal. Here's the next question. Which of the following is not correctly matched? And the options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option B, given by Rudraksh. Here's the next question. Which hip hop musician has her real name as Robin Fenty? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option B, given by Rudraksh. Here's the next question. The oldest form of composition of Hindustani vocal music is, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option B, given by Pankuri Goyal. Here's the next question. A gharana is a system of social organizations linked with, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option B, option A, given by Pankuri Goyal. Here's the next question. Who is not related to music? And the option 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option A, given by Pankuri Goyal. Here's the next question. Which famous musician is believed to have invented the tabla? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option C, given by no one. Here's the next question. How many members are there in Korean boy band BTS? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option C. Given by Share. Here's the next question. What was the Jingle Bell song initially called?
And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. and the right answer is option B, given by no one. Congratulations to all the winners. Please give a clap reaction to all the participants. Thank you so much, ma'am. We have got so inspired to see your passion towards your work, and I'm sure everyone must have been amazed to get to know more about your inspiring journey. A heartfelt gratitude to our founder and CEO, Ms. Preeti Agarwal, for initiating such talks which kindles in us curiosity to explore. We convey our heartfelt gratitude to our guest speaker, Ms. Priyanka Ahuja, for a dynamic talk. Your feedbacks and suggestion is most important to us for raising the bar all the time. WhatsApp class group will remain open till 5:30 p.m. Parents and students are requested to share their feedbacks and suggestions in the class group. Thank you so much, everyone, to be a part of this Billabong Inspires Talk series. We will meet tomorrow on 28 November 2021 at the same time with our next guest speaker. Thank you. Thank you.